So when we discuss about biological classification, we have various systems of classification, right? Starting with the first one, that is two kingdom classification, which was being discussed by the pioneer workers. Pioneer workers मतलब जिन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर काम किया, that is Carolus Linnaeus and Aristotle. तो पहले Carolus Linnaeus ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, and he characterized the whole organisms on the earth into two parts, into two kingdoms. वो kingdoms क्या है? Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. उसने इन सब organisms को कुछ basis पे differentiate किया. वो characters क्या हैं? Number one, cell wall. Now as you can see, the cell wall is present in plants but is absent in animals. When we talk about mode of nutrition, so plants can make their food by themselves by photosynthesis. तो ये हुआ autotrophic. Auto means अपने आप, trophic means nourishment. तो अपने आप से nourishment बनाते हैं. While animals are heterotrophic. Hetero means different types of, trophic means nutrition. When animals are dependent upon different sources for their nourishment, क्योंकि animals can be vegetarian also, they can be non-vegetarian also, तो अलग-अलग sources पे depend करते हैं ना. Third point is, what is the response to external stimuli? Plant will not give you any response, but animals will give you a response. Contractile system कैसा है? Plants के अंदर there is no contractile system. For example, in any of the plant there is no contractile system, but with a very important exception, Chlamydomonas has, Euglenoids have the contractile system. Animals में तो normal है, contractile system will be present. So last point, when we talk about locomotion, it is absent in case of plants but present in case of animals. तो इस system का demerit क्या हुआ? क्या इसके अंदर नहीं समझ में आ पा रहा? क्या इसके अंदर हम classify नहीं कर रहे हैं? आप देख सकते हो इसमें हमने एक्सेप्शन में क्लमाइडोमोनास और यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं. Now this system of classification is not able to differentiate, or you can say it is not able to distinguish कि क्लमाइडोमोनास प्लांट है कि एनिमल है या किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, या यूग्लिना प्लांट है एनिमल है किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, वो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है. एंड thus this classification system is a very easy system. So there is this artificial system of classification. जो ये Linnaeus ने कहानी बताई है, ये जो classification है ये एक artificial system है ना. What is artificial system? जब हम सिर्फ vegetative characters की बात करते हैं, ठीक है, vegetative characters मतलब कि जो directly reproduction में involved नहीं है, ठीक है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं है. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्लांट्स के अंदर दो एसेंशियल वर्ल्स होते हैं और दो नॉन एसेंशियल वर्ल्स होते हैं. एसेंशियल होता है एंड्रोएशियम, गायनेशियम, ठीक है, दैट इज द मेल पार्ट इज एंड्रोएशियम, द फीमेल पार्ट इज गायनेशियम. सिमिलरली इन केस ऑफ नॉन एसेंशियल वर्ल्स इट इज सेपल एंड पेटल, है ना, उनका कोई काम नहीं है रिप्रोडक्शन में. So the artificial system of classification or this two kingdom classification is just concerned with the vegetative characters, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ एंड्रोएशियम का स्ट्रक्चर देख रहे हो पर आप उसके अंदर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं कंसिडर कर रहे हो, राइट. यानी कि इस तरह के सिस्टम्स में आप क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दोगे क्योंकि आप ब्रॉडर वे में ज्यादा कैरेक्टर्स के बेसिस पर उसको क्लासिफाई ही नहीं कर रहे हो, है ना. यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों को इक्वल रखूं, दोनों को सेम वेटेज दूं, तो नहीं चलेगा ना यार. क्योंकि आप देखो जो एनवायरमेंट है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है पर सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एनवायरमेंट इतने इजीली अफेक्ट नहीं करता है. ये बात समझ में आई? व्हाट आई एम सेइंग इज कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स जो हैं उन्होंने दे हैव गिवन इक्वल वेटेज टू बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स.
बट ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है किसी भी प्लांट के, दे विल बी इफेक्टेड इजीली बाय द एनवायरमेंट. सो इसलिए हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इतना ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते. रादर वी हैव टू डेवलप सम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. So what does Haeckel did? Haeckel ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी. इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से he introduced a new kingdom, or you can say he established kingdom Protista along with Plantae और Animalia. तो था इतना तो हर एक को समझ में लग रहा था किंगडम्स में कि प्लांट्स और एनिमल्स दो मेजर कैटेगरीज तो हैं, पर ये नहीं क्लासिफाई कर पा रहे थे लोग उस टाइम पे कि क्लमाइडोमोनास या यूग्लिना या बैक्टीरिया या एल्गी या फंजाई ये क्या है, ये प्लांट है, एनिमल है, क्या है. तो ये अर्नस्ट हैकेल जी आए, इन्होंने बोला कि ये जो मैंने एग्जांपल्स के नाम बोले जैसे कि प्रोकैरियोट्स, एल्गी, फंजाई, इनके पास टिश्यूज नहीं. तो इन जिन जिन के पास टिश्यूज नहीं है उनको हम प्रोटिस्टा में डाल देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया इज कमिंग अंडर प्रोकैरियोट्स. प्रोटोजोन्स का कोई एग्जांपल दे सकते हो? सबसे कॉमन एग्जांपल है, तुमने पढ़ रखा है 9th 10th में, मलेरिया कॉज करने वाला प्लास्मोडियम. ठीक है, दैट इज अ प्रोटोजोन, राइट. एल्गी यू नो, फंजाई यू नो. देखो एल्गी और फंजाई में सबसे बड़ा डिफरेंस सिंपल भाषा में बताऊं, एक होता है उली लग जाना, एक होता है काई जम जाना. हरे हरे रंग की काई जम जाती है जहां पे घर में टंकी के पास पानी बहुत ज्यादा रहता हो या किसी एरिया में घर पे, है ना. दैट ग्रीन कलर की काई इज एल्गी. फंजाई क्या है? फंगस. उली लग जाना, ब्रेड को उली लग जाती है, दैट इज फंगस. ठीक है. एंड पॉरीफेरा, दीज आर वेरियस एग्जांपल्स दैट कम्स अंडर प्रोटिस्टा. और ये जो टर्म प्रोटिस्टा है ये दी थी कुवियर ने. एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, इट वाज गिवन बाय कोपलैंड. कोपलैंड सेड कि चार किंगडम्स है, मुनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया. मुनेरा को ही टर्म्ड माइकोटा, प्रोटिस्टा को ही टर्म्ड प्रोटोगिस्टा, एंड प्लांटी को ही टर्म्ड मेटाफाइटा. फाइटा मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड विद प्लांट्स. मेटाजोआ, जोआ मीन्स एनिमल्स. ठीक है. सो मुनेरा में उसने प्रोकैरियोट्स को रखा जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा. प्रोटिस्टा में उसने फंजाई और प्रोटोजोन्स को रखा. इसी तरह से प्लांटी के अंदर उसने यूकैरियोटिक प्लांट्स को रखा और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक एनिमल्स को रखा. राइट? एम आई क्लियर? Yes, ma'am.